Now viewers, let's talk about the curious case of Swati Maliwal. Well, AAP leaders and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal are yet to break their silence over reports of AAP MP Swati Maliwal allegedly being assaulted inside CM's residence. Times Now has accessed Delhi Police's diary entries which reveals the minute-by-minute details of how the controversy unfolded. As per the entry made by the Delhi Police in its diary, Swati Maliwal told cops that she was assaulted at CM's behest by his PA Bibhav Kumar. Now, as per sources, Swati Maliwal even visited the Civil Lines police station at around 9:45 a.m. yesterday. She reportedly told cops that she will file complaint later. Times Now learns that Swati Maliwal is likely to give her written complaint to the Delhi Police. Once the complaint is received, sources say Delhi Police can examine the footage of CCTV cameras installed in CM's house to probe the incident. Let's listen into what Manoj Meena, DCP of Northeast Delhi of Delhi Corps, said about the case. At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station Civil Lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. Now, while Swati Maliwal is yet to lodge a formal complaint and maintains a stoic silence, the National Commission for Women has taken cognizance of the matter and has vowed action. NCW said it will be sending a formal letter to Delhi Police to send an action-taken report in this matter in 3 days. Shockingly, the AAP leaders, including CM Kejriwal, many of whom remain extremely active on social media platforms, are also silent on this case. The BJP is gunning for Aam Aadmi Party and Kejriwal and called the incident shameful. Declaring support for Maliwal, BJP put Kejriwal in the dock, saying how would he protect Delhi's women if he cannot protect his own party MP. बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि इतने संगीन आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे, उनके उकसाने पे अरविंद केजरीवाल जी के पीएस ने उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की खुद की पार्टी की सांसद, उन्हीं की कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री किस मुंह से दिल्ली की महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं? से बहुत सारे मामले उनके और भी आगे आएंगे, क्योंकि अभी तो वो केवल बेल पर आए हुए हैं। 2 तारीख के बाद उनके ऊपर जो शराब घोटाला है उस पर आगे केस चलना है। अभी आरोपी हैं वो। और सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला अपनी ही पार्टी की नहीं, देखिए वो कभी भी जिस नाम से वो सत्ता में आए हैं वो काम उन्होंने कभी नहीं किया। जिन अन्ना हजारे के आंदोलन से वो शुरू हुए थे वो पूरा का पूरा गायब हो गया, वो थीम ही गायब हो गई है। इसलिए दिल्ली की जनता उनको देख रही है कि वो झाड़ू लेकर आए थे कि हम झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे। उन्होंने तो लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसी पर झाड़ू लगा दी है। देखिए, बहुत स्पष्ट दिखता है कि नारी शक्ति आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं। अगर डीसीएम की, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, अगर पूर्व अध्यक्ष अगर उसमें है और राज्यसभा की सांसद वो सुरक्षित नहीं मुख्यमंत्री के घर में, तो प्रश्न ये उठता है पिटाई परिवार ने करवाई या पार्टी ने, पीए ने की कि किसी और ने की। अब ये सवाल खड़ा होता है, कुछ लोग परिवार के भी अब राजनीति में आते आगे दिखते हैं, तो क्या है तनाव ये बढ़ता जाएगा जब वापस अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल वापस जाएंगे। साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। Now, interestingly, 9 days ago, Swati Maliwal, who featured in AAP's list of star campaigners for Delhi, found her name missing from AAP's list of star campaigners for Punjab. The list issued by AAP for Punjab includes names of 40 leaders, including AAP national convener
Arvind Kejriwal, his wife Sunita Kejriwal, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, Manish Sisodia, Sandeep Pathak, Pankaj Gupta and Sanjay Singh. But Swati's name is not in the list. She is the Rajya Sabha MP for the Aam Aadmi Party and a former Delhi Commission for Women chief. Now, this was next target for the BJP as they were quick to hit out at the Aam Aadmi Party and asked if this omission is linked to the alleged assault case. Delhi BJP chief Virendra Sachdeva also lobbed the Parivarvad jibe at Kejriwal, saying while Punjab CM's name features on the third number in the list, that of Kejriwal and the wife occupies the top two spots. स्वाति मालीवाल अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए पर आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ सीएम ऑफिसर सीएम हाउस द्वारा प्रताड़ित किया गया, पुलिस थाने जा पहुंची है। ऐसे बहुत सारे मामले उनके और भी आगे आएंगे, क्योंकि अभी तो वो केवल बेल पर आए हुए हैं। 2 तारीख के बाद उनके ऊपर जो शराब घोटाला है उस पर आगे केस चलना है। जिन अन्ना हजारे के आंदोलन से वो शुरू हुए थे वो पूरा का पूरा गायब हो गया, वो थीम ही गायब हो गई है। झाड़ू लेकर आए थे। लोकसभा चुनाव के लिए जो उन्होंने 7 प्रचारक की लिस्ट निकाली, उसमें बहन स्वाति मालीवाल जी का नाम उसमें से हटा दिया गया है। मतलब आप अपने घर में महिलाओं को बुला के पीटे, दिल्ली की राज्यसभा सांसद को पीटे, दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा को पीटे, और अगर वो शिकायत करें तो आप उनको उस स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा देते हैं और उसके बदले अपनी पत्नी को ऐड करते हैं। दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का महिला विरोधी जो चेहरा है देख चुकी हैं, और इसका जवाब वो अपने वोट से उनको देगी। Now, AAP's INDI bloc ally Congress leaders are demanding the probe must be shifted out of Delhi. Listen in. If it has happened, it is very unfortunate. Proper investigation should be taking place, but not by Delhi police. This case should be transferred to some other state where BJP is not ruling, so that truth will come out, and if he has done anything wrong, definitely he should be punished. At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि इतने संगीन आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे, उनके उकसाने पे अरविंद केजरीवाल जी के पीएस ने उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की खुद की पार्टी की सांसद, उन्हीं की कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री किस मुंह से दिल्ली की महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं? ऐसे बहुत सारे मामले उनके और भी आगे आएंगे, क्योंकि अभी तो वो केवल बेल पर आए हुए हैं। 2 तारीख के बाद उनके ऊपर जो शराब घोटाला है उस पर आगे केस चलना है। अभी आरोपी हैं वो। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला अपनी ही पार्टी की नहीं, देखिए वो कभी भी जिस नाम से वो सत्ता में आए हैं वो काम उन्होंने कभी नहीं किया। जिन अन्ना हजारे के आंदोलन से वो शुरू हुए थे वो पूरा का पूरा गायब हो गया, वो थीम ही गायब हो गई है। इसलिए दिल्ली की जनता उनको देख रही है कि वो झाड़ू लेकर आए थे कि हम झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे। उन्होंने तो लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसी पर झाड़ू लगा दी है। देखिए, बहुत स्पष्ट दिखता है कि नारी शक्ति आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं। अगर डीसीएम की, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, अगर पूर्व अध्यक्ष अगर उसमें है और राज्यसभा की सांसद वो सुरक्षित नहीं मुख्यमंत्री के घर में, तो प्रश्न ये उठता है पिटाई परिवार ने करवाई या पार्टी ने, पीए ने की कि किसी और ने की। अब ये सवाल खड़ा होता है, कुछ लोग परिवार के भी अब राजनीति में आते आगे दिखते हैं, तो क्या है तनाव ये बढ़ता जाएगा जब वापस
अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल वापस जाएंगे। साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।